امی کی ایک بہت اچھی اور پرانی دوست جو کہ ملتان میں رہا کرتی تھیں، ان کا ہنستا مسکراتا گھرانہ کچھ دنوں میں بالکل اجڑ گیا۔ ان کے گھر کی رونق ویرانی میں بدل گئی۔ ان کے گھر میں کسی دوسری مخلوق کا قبضہ ہو گیا۔ کچھ سائے ان کے ارد گرد منڈلاتے۔ ان کا گھرانہ مختلف حادثات کا شکار رہا۔ ان کا ایک بیٹا بے موت مارا گیا۔ ان کے شوہر اپاہج ہوئے۔ اپنے گھرانے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش بے سود ثابت ہوئی، اور وہ پے در پے جانی اور مالی نقصانات کو ایسا کیا تھا کہ ان کی زندگی راتوں رات ویران ہو گئی۔ ان کا گھر کھنڈر بن گیا۔ جب ہمیں اس راز کے پیچھے چھپی حقیقت کا پتہ چلا تو ہم سب دنگ رہ گئے کہ کسی کی ایک غلط فہمی اتنی زندگیاں اجاڑ دیتی ہے۔ آئیے سناتی ہوں آج میں آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانی جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ واقعہ میری ایک ایسی دوست کا ہے جس کے ساتھ میرا بچپن گزرا۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ایسے تھا جیسے وہ میرے گھر کی یا میں اس کے گھر کی ایک فرد ہوں۔ ہمارے گھر والے بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب تھے، اس لیے وہ اپنی ایک ایک بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ اس میں بچپنا کچھ زیادہ تھا۔ وہ بہت جذباتی لڑکی تھی، سوچ سمجھ کر کوئی بات نہیں کرتی تھی، مگر میں بہت سوچ سمجھ کر بات کرتی۔ کتنی بات کس سے کرنی ہے، کیا کب بولنا ہے، یہ سب مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا تھا۔ ایک بات اور تھی کہ وہ اپنی ہر بات صرف مجھے بتاتی۔ اپنے گھر میں وہ کسی سے بھی زیادہ کلوز نہیں تھی، جبکہ میں اپنا ہر معاملہ اپنی امی سے ڈسکس کرتی، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ جتنا اچھا وہ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں اتنا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں اپنی دوست جس کا نام مونا تھا اس سے اپنی بات شیئر نہیں کرتی تھی، مگر اس کی ہر بات پر میں اسے اچھا مشورہ ضرور دیتی تھی۔ شاید اسی لیے اسے مجھ پر بے حد اعتماد تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے شوق ایک جیسے تھے، اس لیے ہمارا اچھا وقت گزرتا۔ اس وقت ہماری عمریں تقریباً 17 سال کے لگ بھگ تھیں۔ تبھی میری امی کی دوست طاہرہ آنٹی کی والدہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ مونا کے لیے مانگ لیا۔ یہ رشتہ اس کے والدین کی نظر میں بہت اچھا تھا۔ والدین نے فوراً ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اپنا امی کو پتا تھا کہ یہ طاہرہ آنٹی کے بھائی کا رشتہ ہے، اور نہ طاہرہ آنٹی اور ان کے خاندان کو پتا تھا کہ ہم مونا کو جانتے ہیں۔ مونا کی شادی ٹھیک 3 مہینے بعد طے کر دی گئی۔ ہم اس وقت لاہور میں رہتے تھے، جبکہ لڑکا اپنی جاب کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان میں تھا۔ اس کا کم عمری میں رشتہ طے ہونے اور پھر فوراً شادی ہونے پر جتنا ہم شوق تھے اتنا ہی میرے والدین بھی، کیونکہ اس زمانے میں بھی 17 سال کی بچیوں کی کون شادی کرتا تھا، مگر کون کیا کہہ سکتا تھا۔ مونا میرے سامنے آ کر بہت روئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس عمر میں شادی جیسی بڑی ذمہ داری کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وجہ صرف اس رشتے کو طے کرنے کی بظاہر یہی سمجھ آئی کہ لڑکے کی جاب بے حد اعلیٰ تھی۔ وہ لڑکا 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ سب بہنیں شادی شدہ تھیں۔ ساس نند کا جھنجھٹ کوئی نہیں تھا، کیونکہ لڑکا جاب کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان میں تھا اور مونا بھی ظاہر سی بات ہے اسی کے ساتھ رہتی۔ مگر سب سے بڑی بات، وہ لڑکا مونا سے 20 سال بڑا تھا اور اس کے والدین کو یہ فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال روتی دھوتی مونا کی شادی اس بندے سے ہو گئی۔ اس کی شادی والے دن ہی امی اور مجھے پتا چلا کہ یہ تو طاہرہ آنٹی کا بھائی ہے۔ طاہرہ آنٹی ان دنوں مسقط میں رہتی تھیں اور دور ہونے کی وجہ سے امی اور ان کی بات کم ہی ہو پاتی تھی، اور یوں مونا رخصت ہو گئی۔ مجھے اس کی اکثر یاد آتی۔ اس کی امی اکثر ہمارے گھر آ کے میری امی سے کہتی کہ مونا کی تو شادی ہو گئی، اب آپ صوفیہ کی کر دیں، مگر امی صاف کہہ دیتی تھیں کہ صوفیہ کی تعلیم ضروری ہے اور نہ ہم اتنی چھوٹی عمر میں شادی کرنے کے حق میں ہیں۔ ہر زمانے کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اور اس زمانے کی پہلی ضرورت تعلیم تھی۔
बहरहाल मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस दौरान मोना के दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। मोना अपने मैके कम ही आती और जब उसका शौहर साथ होता तब तो उसे मुझसे मिलने की इजाज़त भी नहीं होती। कुल मिला के बात ये थी कि शौहर बेहद सख्त मिजाज था। बहुत कम ही वो मोना को मैके जाने की इजाज़त देता और अगर वो मैके आ भी जाती तो उसे किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं होती। और अगर वो साथ ना आया होता तो लम्हा लम्हा भर में फ़ोन करके पूछता रहता कि कहाँ हो, क्या कर रही हो। 4-5 साल इसी तरह से गुजर गए। इसकी शौहर की तबीयत में कोई फ़र्क नहीं आया। उसी दौरान अल्लाह ने उसको रहमत से नवाजा और वो एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। एक दिन वो अपने मैके आई तो अचानक से हमारे घर आ गई। वो बहुत मुरझाई हुई थी। उसने रो रो कर बताया कि उसका शौहर बहुत ही अक्खड़ मिजाज और असूलों का पाबंद है। ना वो उसे वहाँ किसी से मिलने देता है, ना ही किसी से बात करने देता है। उसने ये भी बताया कि शादी के कुछ अरसे बाद ही उसके शौहर की जॉब छूट चुकी है। अब वो सारा सारा दिन घर में रहता है। काफ़ी जगह उसने अप्लाई किया मगर जहाँ भी जाता है कहता है कि मेरे कैलिबर की जॉब नहीं है और हर जॉब को रिजेक्ट कर देता है। असल में उसकी गर्दन में सरिया आ गया था। अपने आप को वो बहुत कुछ समझता था। जॉब छूटने के बाद घर में एक पैसा भी नहीं देता था और मोना के माँ बाप उसका और उसकी बच्ची का खर्चा उठा रहे थे। एक बात जो उसने मुझे बताई कि उसकी बड़ी नंद ताहिरा आंटी जो मेरी अम्मी की दोस्त थी उनसे उनका शौहर बहुत ज़्यादा क्लोज था। ताहिरा आंटी उसके शौहर को फ़ोन करती और उससे काफ़ी देर देर तक बातें करती। जब से उसके शौहर की जॉब छूटी थी ताहिरा आंटी रोज़ अपने भाई को बिला नागा फ़ोन करती और जब ताहिरा आंटी का फ़ोन आता तो उसका शौहर फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चला जाता। इस सारे अरसे में मेरी अम्मी की बातचीत ताहिरा आंटी से नहीं हो रही थी। मोना से यही पता चला कि वो मस्कत से पाकिस्तान आ गई हैं और मुल्तान में हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे सास ससुर का रवैया कैसा है। मोना कहने लगी कि बज़ाहिर तो वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं मगर मुझे लगता है कि ये सब ड्रामा है, सब उसके शौहर के साथ है, तभी तो वो छोटी मोटी नौकरी को मुंह नहीं लगाता। मैंने मोना को समझाया कि तुम अपने ताल्लुकात अपने ससुराल वालों से अच्छे रखो कि उनको सिर्फ अपने बेटे से बात करने की ज़रूरत ना पड़े, वो तुमसे भी बातचीत किया करें। मगर उसके जहन पर भूत सवार था कि ये लोग मेरा घर उजाड़ना चाहते हैं, मेरे खिलाफ मेरे शौहर के कान भरते हैं। इसीलिए ना उसे बीवी का ख्याल है ना बेटी का। उस दिन उसका शौहर किसी करीबी रिश्तेदार की फौतगी पर गया हुआ था। तभी वो मेरे पास बैठ गई मगर मुझे वो कह गई थी कि जब वो सोयम पर जाएगा तो वो मेरे घर ज़रूर आएगी। मैंने ये सब बातें अम्मी को बताईं। मेरी अम्मी को भी उसके हालात सुनकर बहुत अफसोस हुआ मगर मेरी अम्मी की एक आदत थी या इसे असूल कह लीजिए कि वो इधर की बात उधर नहीं करती थी। ना ही वो अपनी दोस्त ताहिरा आंटी जो कि मोना की बड़ी नंद थी उससे मोना की कोई बात करती और ना ही मोना की अम्मी से अपनी दोस्त की कोई बात करती। बहरहाल वो सोयम वाले दिन मेरे घर नहीं आ सकी। मैंने यही समझा कि शायद वो वापस न चली गई हो। मैंने जब से सुना था कि उसका शौहर सख्त मिजाज आदमी है मैं उसके घर नहीं जाती थी। एक बात ये थी कि जब भी ताहिरा आंटी ने मेरी अम्मी से बात की वो कभी भी मोना का जिक्र या उसके ख़ानदान का जिक्र कभी बीच में नहीं लेकर आई, ना ही अपने भाई के घर के हालात। अम्मी और ताहिरा आंटी बस अपनी बात किया करती थी। न मेरी अम्मी मोना के ख़ानदान को डिस्कस करती न मोना के हालात को, ना ही ताहिरा आंटी अपने भाई के घर की कोई भी बात अम्मी को बताती थी। दोनों की आदत एक जैसी थी। एक अच्छे ख़ानदानी होने की ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि आप अपने घर की बात घर में ही रखें। इसी अरसे में मोना की अम्मी की अचानक डेथ हो गई। उनकी डेथ पर मोना की सास भी शरीक हुई। खैर अब मेरी अम्मी इस सब के बीच में बड़ी मोहतात हो गई। अम्मी ने मुझे भी कहा कि मोना जो भी कहे सुन लेना मगर अपनी ज़ुबान से ऐसी कोई बात ना करना जो काबिल गिरफ्त हो। अच्छा मशवरा दे सकती हो तो ज़रूर दो वरना
खामोशी बेहतर है। थोड़े दिनों के बाद ही हमारी काम वाली मुलाजमा ने बताया कि मोना बाजी तो घर आ गई हैं हमेशा हमेशा के लिए, और वो अपनी बेटी को भी साथ ले आई हैं। अब वो कभी वापस नहीं जाएंगी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मोना बाजी का अपने मियाँ से एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। नौबत मारपीट तक पहुंच चुकी थी। तभी मोना बाजी ने वो घर छोड़ दिया, और वो अपनी बड़ी नंद को हर वक्त कोसती हैं कि उन्होंने ही उनका घर उजाड़ा है। मेरी अम्मी काफ़ी परेशान हो गई। मैं उससे मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी और रो रो कर कोसने अपनी बड़ी नंद यानी ताहिरा आंटी को दे रही थी। वो उनके लिए बहुत बुरी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही थी। मैं हैरान थी कि ताहिरा आंटी उसकी माँ की उम्र की हैं। अदब एहतराम एक तरफ रख कर वो बहुत बुरी ज़ुबान में उनको बद्दुआएं दे रही थी, और कह रही थी कि लाजमन ताहिरा बाजी ने तुम्हारी अम्मी से मेरे मुतालिक बात की होगी। बताओ क्या कहा उन्होंने। मैंने उसे यकीन दिलाने की बेहद कोशिश की कि नहीं भाई, तुम्हारी बड़ी नंद ऐसी कोई बात मेरी माँ से नहीं करती, मगर वो तो आपे से बाहर थी। उसकी हालत ऐसी थी कि अगर ताहिरा बाजी उसके सामने होती तो वो शायद उन्हें मार डालती। मुझे इससे इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी कि अब और मज़ीद मेरा बर्दाश्त करना मुश्किल था, और मैं उसके घर से उठ आई। कुछ अरसा उससे बिल्कुल मैंने बात नहीं की। उसका फ़ोन आता तो मैं उठाती ही नहीं, क्योंकि मुझे उसका रवैया, उसकी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। किसी से इख्तलाफ सही, मगर आप अपनी ज़ुबान पर काबू तो रखें। कुछ दिनों बाद ही अम्मी ने बताया कि ताहिरा से मेरी बात हुई है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। इस दौरान हमारे घर की मुलाजमा, जो कि मोना के घर कपड़े इस्त्री करने जाती थी, वो हमसे अक्सर ताहिरा आंटी की बुराइयां करती और उनके मुतालिक बड़ी गलत बातें करती कि खुदा समझेगा उन्हें, उनका घर भी उजड़ेगा देखना, वगैरह वगैरह। मेरी अम्मी ने उसे झाड़ पिला दी कि जो कुछ भी है ये उनके घर का मामला है, तुम कौन होती हो इस तरह से बात करने वाली। तो वो बोली, अब देखिए मोना बाजी का घर ख़राब किया उन्होंने, इनकी औलाद के सामने आएगा। अम्मी ने फिर उसे डांट दिया कि मेरे घर आके इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है, काम से काम रखो। मैंने नोटिस किया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला कुछ ज़्यादा ही दीवाना हो रहा है। बहरहाल जब उसने देखा कि यहाँ तो सुनवाई नहीं, तो वो खामोश हो गई। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मैं खुद इतना बिजी हो गई कि कुछ होश ही नहीं रहा। थोड़े दिनों बाद अम्मी से पता चला कि ताहिरा आंटी के हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई और इनके शौहर की दोनों टांगें उस हादसे में चली गईं। मुझे बेहद अफसोस हुआ। अम्मी ताहिरा आंटी के घर मुल्तान मिलने भी गई, क्योंकि वो ताहिरा आंटी से बेहद क्लोज थी। अम्मी के बकौल ताहिरा आंटी बहुत नफीस खातून थी, और ये बात हम सब बचपन से जानते थे। कुछ दिन रहकर अम्मी जब वापस आईं तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार मैं बखूबी देख सकती थी। अम्मी ने बताया कि ताहिरा के घर के तो बहुत बुरे हालात हैं। वो हंसती मुस्कुराती एक सेटल जिंदगी गुजार रही थी, और अब अचानक उसके घर में दो चार ऐसे बड़े बड़े हादसात हुए हैं कि वो तो गायब दिमाग से हो गई है। अम्मी के बकौल सबसे पहले उसके बड़े बेटे को खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया गया। थोड़े ही दिनों बाद उसके शौहर की कपड़े की दुकान पर खुद ब खुद आग भड़क उठी। उससे ना सिर्फ उसकी दुकान बल्कि आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा, और ताहिरा बाजी के हस्बैंड की तो पूरी दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। उनके घर बहुत बड़ा डाका डाला, डाकू सब कुछ ले उड़े, और अब उनके मियाँ का इतना बड़ा एक्सीडेंट। ये सब कुछ 10 से 15 दिन के अंदर हुआ, और अब ताहिरा आंटी को ऐसा लगता है कि उनके घर में किसी अनदेखी मखलूक का कब्जा है। अम्मी के बकौल मैं ये खुद देख कर आई हूँ। उसके घर से रौनक ख़त्म हो चुकी है। एक अफसुर्दगी का पहरा है। सबके चेहरे परेशान हैं। उनके घर में कुछ साए नज़र आते हैं। मगरिब के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई ताकत है जो जहनों को मुंजमद कर रही हो। न ताहिरा आंटी नमाज पढ़ सकती हैं, ना ही कोई इबादत। वो जब ऐसा करने का सोचती हैं तो इनके सर में शदीद दर्द की लहरें उठती हैं, और वो बेसुध बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। ये सब कुछ देखकर अम्मी के तो औसान खता हो गए।
अम्मी ने लाख वहाँ दुआएं पढ़ने की कोशिश की, मगर अम्मी के बकौल की कोई फोर्स ऐसा करने से उन्हें रोकती थी। तभी अम्मी को जब हालात की नज़ाकत का एहसास हुआ तो अम्मी फ़ौरन वहाँ से निकल आईं। अम्मी ने इस मौजू पर ताहिरा आंटी से बात की तो पता चला कि अभी कुछ दिनों पहले तक सब हालात ठीक थे। अचानक पै दर पै ऐसे वाक़यात रौनमा हो रहे हैं। आंटी ने अम्मी को बताया कि मुझे अपने ही घर में कुछ कद आवर लोग घूमते महसूस होते हैं और वो हर वक्त उनको गज़बनाक निगाहों से देखते हैं। कभी लगता है कि वो उन्हें मार डालेंगे। हम सब घर वाले इन सब बातों को सुनकर बेहद परेशान हो गए। ताहिरा आंटी एक नेक खातून थी, उनके लिए दिल से दुआएं निकल रही थीं, और आप यकीन करें इस सब में मुझे और अम्मी को मोना का बिल्कुल भी ख्याल दिल में नहीं आया। वो मुलाजमा जो हमारे घर आती थी अब खामोशी से अपना काम ख़त्म करके चली जाती। अब वो मोना के घर की कोई बात हमारे घर में नहीं करती थी। ताहिरा आंटी बहुत अजीब सी हो गई थी। ना वो फ़ोन करती, ना अम्मी से बात करती। कभी अम्मी फ़ोन करती तो वो कहती कि कौन, यानी वो अम्मी को पहचान भी नहीं रही थी। दिनों के अंदर वो बिल्कुल बदल गई थी, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। अम्मी उनके बेटे से राब्ते में थी, उसी से हाल चाल पूछ लिया करती थी। तभी उसने बताया कि आंटी आप अम्मी के लिए दुआ करें, पता नहीं उन्हें क्या होता जा रहा है। दिन ब दिन वो ख़त्म होती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई खून की तरह अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा हो। हम सब उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते। एक दिन उनके बेटे का अचानक फ़ोन आया कि आंटी बड़े भाई की लाश उसके वॉशरूम से मिली है। वो कैसे मरा, उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता था। रात वो ठीक ठाक अपने कमरे में गया था। सुबह जब कमरे का दरवाज़ा देर तक न खुला तो दरवाजे का लॉक तोड़ा गया। फिर वॉशरूम का लॉक तोड़ा तो वो अंदर वॉशरूम के फर्श पर मुर्दा हालत में था। उसके गर्दन और उसके सीने पर जा बजा काले निशान थे और गर्दन एक तरफ को मोड़ी हुई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे गर्दन तोड़कर मारा गया था, मगर बंद वॉशरूम में ये कैसे पॉसिबल था? पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका। सब परेशान थे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि दोनों दरवाजे अंदर से बंद हों, उसके बावजूद अंदर इस तरह से मौत वाक़या हो। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थी, एक एक चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे दोनों हाथों से गर्दन को एक झटके से मोड़ दिया गया हो। वॉशरूम की दीवारों पर खून के छींटे थे, जबकि बज़ाहिर उसके जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं निकला था। हमारी तो ये सब सुनकर हालत बुरी थी। अम्मी ताहिरा आंटी से बात करना चाहती थी, मगर वो तो ऐसी हालत में ही नहीं थी कि उनसे बात हो सकती। वो तो ज़ोर ज़ोर से जवान बेटे का रो रो कर दुख बना रही थी। हमारा दिल फट रहा था ये सब सुनकर। अम्मी चाहती थीं कि उनका घर दिखाया जाए। अम्मी को इन सब चीज़ों पर शक हो रहा था, मगर बात करने का ये मुनासिब मौका नहीं था। अम्मी पहले भी ताहिरा आंटी को कह कर आई थीं कि अपना घर दिखाओ, मगर वो शायद इस मेंटल स्टेट में नहीं थी। आप किसी के घर के मामलात में एक हद तक ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा तो कोई भी गैर, चाहे वो कोई भी हो, मशवरा तो दे सकता है मगर मदाखलत नहीं कर सकता। सोयम का दिन था। अम्मी ने ताहिरा आंटी से फिर बात करना चाही, मगर उनकी तबीयत ऐसी थी कि उनसे किसी की भी बात नहीं कराई जा रही थी। उनके शौहर की टांगों के जख्म अभी खुश्क नहीं हुए थे। बेटे की जॉब चले जाना, दूसरे बेटे की बैठे बिठाए मौत, घर में डाका, फिर उनकी अपनी हालत ऐसी थी। एकदम हंसता बसता घर वीरान हो गया। मेरे अब्बू उनके बेटे के इंतकाल पर मुल्तान गए। वो भी उनके घर के हालात देखकर बहुत गमगीन थे। मेरे जहन में ये था कि पता नहीं मोना को इन सब हालात का पता भी है कि नहीं। ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी गले लगा लेते हैं। मैंने एक दिन मौका देखा तो अम्मी से कहा कि मैं मोना के घर जाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हम वहाँ पहुँचे। मोना आराम से बच्ची को खाना खिला रही थी और घर में तेज़ म्यूज़िक ऑन था।
उसने अम्मी को देखते के साथ ही म्यूजिक ऑफ कर दिया। अम्मी ने उसके घर के माहौल से अंदाज़ा लगाया कि मोना अपनी मर्जी के मुताबिक घर में ज़िंदगी गुजार रही है। जाहिर सी बात है, माँ तो थी नहीं, दोनों भाई बाहर थे और बूढ़ा बाप। अम्मी ने ताहिरा बाजी के तमाम हालात व वाक़यात मोना को बताए तो मोना के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। मैं तो समझी थी कि शायद उसे दुख होगा। जाहिर सी बात है, उसका ससुराली रिश्ता था, मगर वो मुतमईन बैठी ये सब सुन रही थी। ना सिर्फ सुन रही थी बल्कि उसके चेहरे पर तो एक ज़ेर लब मुस्कुराहट भी थी, बड़ी मायने खेज। और साथ बैठी हमारी मुलाजमा जो हमारे घर काम करती थी और मोना के घर वो कपड़े इस्त्री करने जाती थी, वो बिल्कुल अकड़ कर मोना के साथ सोफे पर बैठी थी। मुलाजमा के अंदाज में कुछ था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मुलाजमा से ज़्यादा घर की मालकन लग रही थी। अम्मी मोना को कोई भी अम्मी ने जो भी मोना के घर महसूस किया वो अब्बू को बताया। मुलाजमा को फ़ोन पर ही अम्मी ने जवाब दे दिया कि अब मत आना, जो हिसाब होगा वो हम खुद तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अम्मी कुछ कुछ चीज़ें भांप चुकी थी। अम्मी का जहन सोचों में गुम था। अम्मी ने तभी ताहिरा आंटी के बेटे को फ़ोन मिलाया। वो कहीं मसरूफ़ था, मगर अम्मी ने उससे कहा कि जैसे ही फारिग हो मुझसे बात करो। कुछ देर बाद ही उसका फ़ोन आया। तब अम्मी ने उससे कहा कि बेटा, मुझे किसी के घरेलू मामलात में बोलना अच्छा नहीं लगता, मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मामू कैसे हैं। तो वो इस बात के जवाब में एक आह भरकर बोला, आंटी वो तो नशे की आदत में पड़ चुके हैं। पता नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ये बताना, मगर वो खुद अपने होशों में नहीं होते। जब से उनकी बीवी घर छोड़ कर गई है तब से वो और ज़्यादा नशा करने लगे हैं। इस बात से तो साफ जाहिर था कि वो मोना के होते हुए भी नशा कर रहा था। एक बात का अम्मी को सकून हो गया कि ये बात तो मोना ठीक कह रही थी। फिर अम्मी ने ताहिरा आंटी की तबीयत पूछी तो वो कहने लगा कि आंटी घर के हालात, अम्मी के हालात बहुत ख़राब हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि अपना सर दीवारों पर मारूं। अम्मी रात को सो नहीं पाती। वो कहती हैं कि रात के वक्त मेरा गला कोई दबाने की कोशिश करता है। वो चीखें मारती हैं, किसी ख़ास सिम देख कर इशारे करती हैं। अब्बू भी व्हील चेयर से गिर पड़े हैं। उनके चेहरे पर शदीद स्वेलिंग है और दाएं बाजू की हड्डी भी टूट चुकी है। कोई मुलाजिम घर पर नहीं टिकता। सब ये हालात देखकर भाग जाते हैं। सब रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, खैरियत पूछते हैं, मगर हम मुल्तान जैसे शहर में बिल्कुल अकेले हैं आंटी। ताहिरा आंटी की बेटी की पढ़ाई भी बीच में रुक चुकी थी। अम्मी ने उसे बहुत समझाया और कहा कि बेटा किसी को दिखाओ। कहने लगा, आंटी सब पैसे ऐंठने के लिए बैठे हैं, जिसके यहाँ भी जाओ पता नहीं क्या क्या पढ़कर जाते हैं कि हालात और मज़ीद बेकाबू हो जाते हैं। अम्मी भी बेहद परेशान हो गई। अम्मी ने बहुत सी दुआएं उसे पढ़ने को बताई और अम्मी ने ताहिरा आंटी के बेटे से पूछा, क्या इस सब अरसे में तुम्हें घर से कुछ मिला? वो बोला कि आंटी, जब से ये हालात हुए हैं हमारे घर के सारे पौधे ख़त्म हो चुके हैं। जिस दिन मेरे भाई की लाश वॉशरूम से मिली थी उस दिन सुबह में वो माली से क्यारी और पौधों की सफाई करवा रहा था। तभी उसे लॉन से कुछ तावीज़ात जो कि मिट्टी में दफन थे मेरे भाई को मिले। हमें उस वक्त तो समझ नहीं आया कि आखिर कौन हमारे पीछे है। अम्मी ये कह रही थी कि किसी को दिखाने हैं, मगर उसी रात भाई के साथ ये हादसा हुआ। और अब जो दोबारा सोचा कि वो तावीज़ात हम किसी को दिखाएं तो वो आंटी घर में उस जगह पर जहां मैंने खुद अपने हाथों से रखे थे है ही नहीं। हमने पूरा घर छान मारा है मगर वो कहीं नहीं मिली। अम्मी तो अपना सर पकड़ के बैठ गई। अम्मी का शक ठीक था। उनका बेटा कहने लगा कि आंटी, अभी मैं घर से बाहर हूँ तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मगर आप यकीन करें कि मैं घर जाऊँगा, आपका फ़ोन बजेगा तो मुझे सुनाई ही नहीं देगा। मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊँगा। हम सबको घर में एक प्रेजेंस फील होती है। मैं बहुत परेशान हूँ आंटी। बहुत से लोगों को दिखाया मगर हालात में कोई फ़र्क भी नहीं आ रहा। अम्मी अब्बू ऐसी हालत में है ही नहीं कि मैं उनसे बात कर सकूं।
मेरी दोनों खालाएं रोज़ फ़ोन करके मुझसे घर के हालात, अम्मी की तबीयत, अब्बू की तबीयत के बारे में मालूम करती हैं। मेरा दिमाग सुन्न होकर रह गया है। अम्मी लाहौर से बैठी आंटी को, अंकल को, उनके बेटे को, उनके घर की एक एक चीज़ को हिसार में लेती रहती। मगर इस बात की ठीक 13वें दिन पता चला कि ताहिरा आंटी के इस बेटे को करंट लग गया। डॉक्टर्स ने बमुश्किल उसकी जान बचाई। हमारे तो अपने घर में दुख की कैफियत थी। हम सब रंजीदा और हर पल इस खानदान के लिए दुआएं करते ना थकते थे। अम्मी ने फौरन उनके खानदान के सकात निकाले। ताहिरा आंटी की दोनों बहनें भी बहुत परेशान थीं। दोनों मुल्क से बाहर थीं। ताहिरा आंटी की अपनी माँ एक ज़ईफ़ औरत थी। उनको तो जीते जी बेटे का गम खा रहा था। वो खुद हर वक्त बीमार रहती। उन सब हालात में ताहिरा आंटी की छोटी बहन कनाडा से अपने शौहर के साथ आ गई। उन्होंने फ़ोन पर अम्मी से भी बात की इस सारी सिचुएशन के बारे में। वो खुद होटल में रह रही थी। कहने लगी कि ये फ़ैसला मैंने ताहिरा बाजी के घर जाकर उनके हालात देखने के बाद किया। उनके शौहर का कहना था कि अगर हम उस घर में रहे तो हमारे ऊपर भी असरात आएंगे और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके आने का ख़ानदान भर में किसी को पता नहीं था। उन्होंने सिर्फ अम्मी को फ़ोन किया। वो अम्मी से राब्ते में थी। उनके शौहर एक अक्लमंद इंसान थे। उनके बकौल दूर से बैठकर ना हम मामलात समझ सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। उन्होंने ताहिरा आंटी, उनके हस्बैंड और उनके बेटे सबको सबसे पहले उस घर से निकाला और कहीं और शिफ्ट कर दिया ताकि वो इस माहौल से निकले। मगर उस घर से उन्हें निकालना इस कदर सख्त मरहला था। साफ लग रहा था कि कोई ताकत है जो उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक रही है। चीज़ें टूट रही थीं। ताहिरा आंटी की कमर में अचानक ऐसा दर्द उठा कि वो तकलीफ से कराहने लगी। लेकिन उनकी बहन के बकौल हम सिर्फ ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी का विद करते रहे। घर में और जिस रास्ते से गुजर कर हमने गाड़ी तक जाना था, सब पर हम दुआएं पढ़ते रहे और पानी भी छिड़कते रहे। घर की एक भी चीज़ उन्होंने ना उठाई। ताहिरा आंटी की बहन ने अम्मी को बताया कि माजिद भाई ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। मेरी माँ ने पूछा कि माजिद कौन? तब उन्होंने कहा कि बस अब आप दुआ करें, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि माजिद कौन है। कुछ दिनों तक ताहिरा आंटी की बहन का कोई फ़ोन नहीं आया। ये पूरी कहानी सिर्फ 3 माह की है। वाक़यात इतने हैं जिसे सोच सोच कर लगता है सालों की कहानी है। मगर सिर्फ 3 माह के अंदर हालात मशरिक़ से मग़रिब हो चुके थे। फिर एक दिन अचानक आंटी की बहन का फ़ोन आया। अम्मी ख़ुद बहुत परेशान थी। तब उन्होंने बताया कि आप यकीन करें, ताहिरा बाजी के घर सफली और काला जादू कराया गया था। उनके बेटों को ख़त्म करने, उनके शौहर को अपाहज करने, ताहिरा बाजी को पागल करने, उनके कारोबार घर को ख़त्म करने, उनके रिस्क की बंदिश के लिए उनके घर पर जिन्नात छोड़े गए थे। उनके घर में मौकिलात के ज़रिए गोश्त दफनाया गया था जिसे माजिद भाई ने बरामद किया। उन्होंने कहा कि ये सख्त तरीन अमल था और ये अमल अब अपने आखिरी हिस्से में था। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि शायद ताहिरा आंटी बच ना पाए क्योंकि वो मुकम्मल कब्जे में है और उन्हीं की दुश्मनी में उनके पूरे घराने पर ऐसा अमल कराया गया था कि वो अजियत में रहे और लम्हा लम्हा अपने प्यारों को खोता देख कर मरे। हमारे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। ऐसी बेकसी थी। मगर मेरी अम्मी किसी पहाड़ की तरह खड़ी थी। वो फौरन ताहिरा आंटी के पास मुल्तान चली गई। अम्मी जब मुल्तान होटल पहुंची तो उनसे ताहिरा आंटी की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। तभी बातों के दरमियान अम्मी ने उनकी बहन और बहनोई को बताया कि मोना बेहद बदसन रहती है ताहिरा से। वो कहने लगी, हाँ, जब तक हमारा भाई होश में होता था वो हमें बताता था कि वो ताहिरा बाजी के लिए खूब गालियां बकती थी, उन्हें बुरा भला कहती थी। तब अम्मी ने कहा कि मोना कहती है कि ताहिरा ने अपने भाई को उसके खिलाफ भड़काया है। ताहिरा आंटी की बहन बोली कि मैं अपने भाई की साइड क्या लूँ। मोना की ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे भाई का मिजाज उसके साथ शुरू दिन से ठीक नहीं था और बेरोजगार होने के बाद तो वो और भी ज़्यादा उन दोनों के आपस के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे क्योंकि जाहिर सी बात है
मर्द कमाएगा नहीं तो घर में झगड़े तो होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो सिगरेट से नशे पर आ गया और अब उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहता। वो सारा दिन नशे में धुत पड़ा रहता है। जो जमा पूंजी थी उसने सब नशे में लगा दी। मगर इन सब में मोना का ये कहना कि इस सब की वजह ताहिरा बाजी थी बिल्कुल गलत है। उसने ज़रूर अपने दिल में कोई गलत फहमी पाल रखी है। ताहिरा बाजी तो सारा सारा दिन भाई को समझाती थी कि शायद कोई उनकी बात उनके भाई पर असर कर जाए और वो सुधर जाए। अम्मी पहले भी मोना की बात मानने को तैयार नहीं होती थी, क्योंकि वो इन बहनों को और ताहिरा बाजी को बहुत अच्छे से जानती थी। ताहिरा बाजी का उसके किसी भी मामले में कोई दखल नहीं था। खैर माजिद साहब की भी अम्मी से मुलाकात हुई। माजिद साहब ताहिरा आंटी की बहन के हस्बैंड के दूर के रिश्तेदार थे। जब ताहिरा आंटी के बहनोई को माजिद साहब के इल्म, उनके पढ़ने पढ़ाने का पता चला, तभी उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ही उनको पाकिस्तान आने का मशवरा दिया, ताकि उनके सामने ही वो इन सब चीज़ों का उस ख़ानदान से मिलकर और उस घर का जायज़ा लेकर ही पता करा सकें कि उस घर में आखिर ऐसा क्या है कि ताहिरा आंटी के हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। मगर वो ताहिरा आंटी को नहीं बचा सके। ताहिरा आंटी रात की तारीकी में चीखें मारते मारते इंतकाल कर गई। अम्मी ने उनकी डेथ अपनी आंखों के सामने देखी थी। अम्मी का तो अपना बुरा हाल था। माजिद साहब ने भी ये सब अपनी आंखों से देखा और वो बेबस थे। उनके बकौल वो एक हद तक ही इस जादू को रोक सकते हैं, क्योंकि मेन टारगेट ताहिरा आंटी थी और उन पर एक साथ कई जिन्नात का हमला होता था। उनको बचाना बेहद मुश्किल था। ताहिरा आंटी के इंतकाल का दूसरा दिन था। उनकी बहन क्या वहाँ सब मौजूद थे। यहाँ लाहौर में मैं अब्बू के साथ थी। जिस दिन ताहिरा आंटी की डेथ हुई उसका 5वां रोज़ था और उसी रोज़ अम्मी ने भी वापस आना था। तभी घर पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो मोना को अपने सामने देखा। वो शदीद रो रही थी। मैंने उसे देखा और पूछा कि क्या हुआ। उसे इस हालत में अचानक देखकर पहला ख्याल जो मेरे दिल में आया वो ये था कि शायद उसके अब्बू को कुछ हो ना गया हो। फिर रोते रोते उसने मुझसे पूछा कि ताहिरा बाजी कैसी है। मैंने कहा उनका इंतकाल हो गया। इस बात को सुनकर वो बेतहाशा रोने लगी। मैं समझी शायद रिश्तों की मोहब्बत उसके दिल में जाग उठी। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगी, कहने लगी कि मैंने मार दिया ताहिरा बाजी को, उनके घर को मैंने बर्बाद कर दिया। मैं हक्का पक्का थी कि वो क्या कह रही थी। वो बोली मैंने जादू कराया था उन पर, उन सब पर, उनके घराने पर, और मैं उसको हैरान और परेशान देख रही थी। मेरे ऊपर तो बिजलियां गिर रही थी। अब जो उसने मुझे बताया वो ये था कि उसकी और उसके मियाँ की उम्रों में बहुत बड़ा फ़र्क था, और ये फ़र्क ना सिर्फ उम्रों का बल्कि अक्लों और समझ का भी था। लड़ाई झगड़ों में क्योंकि उसका मियाँ सिर्फ अपनी बड़ी बहन से बात करता, तो वो ये समझती कि उसकी बड़ी बहन ही उसका घर बर्बाद करना चाहती है। और जब बात एक दिन हद से ज़्यादा बढ़ी तो वो घर आकर बैठ गई। उसके मियाँ ने उसे वापस ना बुलाया और ना ही बच्चे की खैरियत पूछी, तो उसे ताहिरा बाजी से नफरत हो गई। वो दिन रात अपने घर उजड़ने पे रोती, और हमारी मुलाजमा जो उसके घर पर आयरन करने चाहती थी उसने उसे भड़काया कि ज़रूर उसकी बड़ी नंद ने ही उसके घर पर और उसके मियाँ पर जादू कराया है। उसका घर बर्बाद करने में उसकी बड़ी नंद का हाथ है, तभी उसका मियाँ बेरोजगार हो गया। वो दुश्मन है आपकी। मोना की माँ थी नहीं, और ये बात रोज रोज बार बार कहने से उसके दिमाग में बैठ गई। मुलाजमा ने भारी रकम के एवज ताहिरा बाजी पर सफली और काला जादू करवाया। उनकी तबाही बर्बादी, बेटों की जान लेने का, उनके मियाँ को जिंदगी भर मोहताज करने और खुद ताहिरा बाजी की जान लेने का एक सख्त तरीन अमल किसी जानने वाले पीर के जरिए कराया गया। और मोना उस आमिल के पास खुद गई थी एक भारी रकम उसके हवाले करने। उस आमिल ने 3 महीने के अंदर पूरे घराने को ख़त्म करने की गारंटी दी थी। मोना ये सब कहती जा रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि कोई भारी चीज़ उठाकर उसके सर पर मार दूं। वो रोती जा रही थी, हिचकियां बन चुकी थी उसकी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ
और मैंने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा कि इतना कुछ करने के बाद मुझे क्यों बताने आई हो। वो रोते रोते चीखने लगी, इसलिए कि पहले तो वो मुलाजमा उसका सारा जेवर नकदी कीमती सामान लेकर गायब हो गई और अब 4-5 दिनों से उसकी बेटी पर जिन्नात के वार हो रहे थे। मोना इस चीज से घबराकर जब आमिर के पास पहुंची तो उसने कहा कि तूने जिस पर अमल कराया था उसने अमल खत्म होने से पहले वो तमाम मदफून चीजें निकाल ली हैं, इसलिए अब वो जिन्नात जो ताहिरा आंटी पर छोड़े गए थे अब वो तेरी अपनी बेटी को भी लेकर जाएंगे। मोना ने उस पीर को लाख वास्ते दिए। उसने कहा, जा कि जिस पर तूने अमल करवाया है उससे माफी मांग ले, अगर वो तुझे माफ कर देगी तो ये जिन्नात तेरी बेटी का पीछा छोड़ देंगे। उसके किसी एक आंसू का मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा था। मुझे तो ताहिरा आंटी और उनके घराने पर रोना आ रहा था। कैसे एक गलत फहमी, एक गलत मशवरे से उनका पूरा घर तबाह हो गया। अम्मी वापस पहुंची, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उनके आंसू रो रो कर खुश्क हो चुके थे। वो कहने लगी कि कितनी दफ़ा मेरा शक मोना पर गया, मगर हर दफ़ा मैंने अपने दिमाग को झटका कि अपने सामने पली बच्ची कैसे इतना बड़ा काम कर सकती है। वो है भी बिना माँ के, हम उस पर कैसे शक कर सकते हैं। पर क्या मालूम था जिसे हम मासूम समझ रहे थे वही आस्तीन का सांप निकलेगा। अम्मी ने तब ये सारी बात हालात की नज़ाकत देखते हुए ताहिरा आंटी की बहन को बता दी। वो खुद सब सुनकर हैरान रह गईं कि जिस कहानी में ताहिरा आंटी का किरदार ही नहीं था उस कहानी का कैसा भयानक अंजाम ताहिरा आंटी को भुगतना पड़ा। उनकी बहन ने कहा कि मैं मोना से कोई इंतकाम नहीं लेना चाहती, हमने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। मोना रोती थी। हमारे घर आ आकर वो हमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती और कहती कि मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी नंद से बात करनी है। उसका नंबर कोई भी ससुराल वाला नहीं उठाता था। वो हमारे घर आके इल्तिजा करती थी कि उनसे मेरी मुलाकात करवा दें, मुझे माफ़ी दिलवा दें या ताहिरा बाजी की कब्र का पता दे दें या उनके बेटे से मिलवा दें, मगर उनके ससुराल वाले कोई उसका फ़ोन नहीं उठाता था। अम्मी ने अपना दरवाज़ा मोना के लिए खुद बंद कर दिया। उसकी बच्ची इस दुनिया में ना रही, ये हमें मोहल्ले वालों से पता चला। वो खुद नीम पागल सी हो गई। हमारे ही इलाके में रहती है आज भी, मगर ना हम किसी से उसके मुतालिक कोई बात करते हैं ना उसका सामना करने को दिल चाहता है। मुझे नहीं मालूम कि हमें मोना की बच्ची की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी या नहीं, मगर हमारे दिल मोना के लिए मुर्दा हो चुके थे। बात यह है कि हम खुद इतना रोए थे कि उसकी आंखों से गिरा एक भी आंसू हम पर असर नहीं कर सका। फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ कि क्या मोना की बच्ची को ना बचाकर हमने ठीक किया या गलत। थैंक यू सो मच सफिया, आपका आपकी स्टोरी को हमारे साथ शेयर करने का। आखिर में हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं और आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।